So, hello everyone. Am I audible? Yes, sir. Audible. Okay, fine. So, I think we are going to start. So, I've given some problem to you. So, are you having any doubt in that problems? So, is anybody is having any doubt the problem which I have given? Okay, so I think we have solved it. So, we will move it to our next topic. So, actually, we are lagging a bit. So, I wanted to finish your course by 20 June. So, now I will take regular classes. So let's see how much we can do up to 20. I will finish up to 20 junior course. So now our next topic is Lempel-Zip algorithm. So I think most of you are aware of this. You might have learned in data compression or any other subject. So Lempel-Zip algorithm, actually it is very interesting topic. So you will enjoy it when we will see. So let's see. So basically I will tell you some theoretical part of this Lempel-Zip algorithm. So in this Lempel-Zip algorithm, all the codes are saved in a dictionary, are saved in a dictionary, and repetition of code is not allowed. So the code which has came one will be not repeated. So this is the main theoretical part of this Lempel-Zip coding, and all the codes are saved in a dictionary. So from that dictionary, if you will save 1 or 0, so from that dictionary, it will automatically take the respective code. So let's see how we will deal with this. So let's take one proper example I will show you. So suppose one example is there that is given as, so I'll write here 10 10 11 0 10 10 10 So this is the example. So like this, the question will come into your paper and it will be like 5 or 6 marks. So if you can go through the previous year paper, one question is always there from Lempel-Zip algorithm. So they will ask, rewrite this code with the help of Lempel-Zip algorithm. So nothing to worry about this. So just follow the step what I'm doing. So first of all, we have to see this one. So this one is has came one. एक बार ये one आया हुआ है. So I'll write here 1. Now you can see this 0. So I put comma. I'll write here 0. Now you can see this 1 0. तो अगर देखेंगे तो 1 0 एक साथ नहीं आया. So what I will write here 1 0. This 1 0. Let's say one more time. I'll tell you. Let's take this 1. So I have written this 1 here. After this, I have taken this 0. So I have written it here 0. So now you can see 1 is there. So I'll write here 1. But I have already written one time. So I'll not repeat this. So after this, I'll take this 0. So I'll write here 1 0. So 1 0 will be a code. So after this, you can see 1. So I have already written 1 at one time. So I can write here 1. So after this 1 is there. So 1 is not there in this code. So I'll write here 1 1. After this, you can see I'll put here 0. So 0 is already there. So what I will do, I'll write here 0. But 0 is already there. So I'll put one more code. So I'll write here 0 1. So you can see 0 1 is not there in the code. After this 1, I'll take this 1. So actually what we are doing, we are making a new code. Repetition of code is not allowed. So if you can see this 1, so 1 is already there. Then 1 0. So 1 0 is already there. 1 0. After this 1. So I'll write here 1 0 1. That will be a new code. So this is 1 0 1. Then 0. So 0 is already there. 0 1. 0 is 1 is already there. Then 0. So 0 1 0 is not there. So I'll write here 0 1 0. Then you can see 1. So 1 is already there. I'll write here 1. 0 1 0 is already there. 1 0 1 is already there. So 1 0 1 0 is new code. So how can you write this? 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. So is this clear? Should I try to tell one more time how I have written this? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए. हाँ बताइए. सर हम ये जो कोड बना रहे हैं तो इसकी लेंथ हमें मिनिमम में कि हम मिनिमम लेंथ से हम न्यू कोड जनरेट कर सकते हैं. मिनिमम लेंथ नहीं देखना है, मतलब कोई भी कोड रिपीट ना हो. देखो आप एक बार और स्टार्ट करता हूँ, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ. आपको आप जो बोल रही हो वो भी क्लियर हो जाएगा. मिनिमम लेंथ कितना भी हो, 2 बिट का हो, 3 बिट का हो, 4 बिट का हो, किसी भी लेंथ का हो, कोड पर रिपीट नहीं होना चाहिए.
आप देखिए सबसे पहले इस वन को लिखते हैं हम। वन है यहाँ नहीं है वन, तो वन एक लेंथ का हो गया कोड। हाँ अभी अभी चल बताओ, आपका भी डाउट साफ साफ में क्लियर कर देता हूँ मैं। अभी चल क्या डाउट है? नहीं 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 नहीं, डाउट नहीं, मैंने तो वो 9 पहले चला गया था, अच्छा फिर कोई बात डाउट नहीं, हुआ है, दोनों अलग। कोई बात। देखिए पहले वन लिख दिया मैंने, तो मतलब वन सिंगल है, यहाँ पे वन न्यू है तो एक नया कोड हो गया। फिर जीरो लिख दिया मैंने, जीरो भी नया है, इसके साथ कोई कोड नहीं लिखा हुआ है तो जीरो भी एक अलग कोड हो गया। तो कैसे बना देंगे? वन जीरो। फिर देखिए इस वन को नीचे लेके आया, तो ये वन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो दैट इज नॉट ए न्यू कोड, सो आई टेक वन मोर जीरो, सो वन जीरो। तो 2 बिट का कोड ले लिए, 2 बिट यहाँ पे देखिए, एक बिट वन जीरो आ चुका है, तो अब क्या होगा? जीरो वन, वन जीरो। तो वन जीरो साथ में नहीं है, तो क्या कर दिया यहाँ पे? कॉमा कर दिए। नाउ आई विल टेक दिस वन कोड, वन इज ऑलरेडी देयर, देन वन वन, तो वन वन इस तीनों में नहीं है, सो व्हाट आई रिटन? वन वन इज आवर न्यू कोड। देन आई विल टेक दिस जीरो, ये जीरो, देन वन, so what I can write here? 0 1, so you can see 0 1 is not there. After this I'll remove this, अभी किसी को कंफ्यूजन होगा, let's say one more time, question is 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, anything you can write. So let's see, यहाँ से वन ले लिया मैंने एक बिट का, क्योंकि नया है बिल्कुल। यहाँ से जीरो ले लिया, यहाँ कॉमा लगा दूंगा, ये भी नया है। ये देखिए ये वन लेके आऊंगा तो पहले से वन है, तो इसके साथ एक और बिट जोड़ना पड़ेगा, ये जीरो लेके आया तो दोनों नए हो गए, वन जीरो। फिर इस वन को लेके आया मैं यहाँ पे, फिर ये वन पहले ऑलरेडी है तो इसके साथ एक और बिट चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक और वन लेके आया, तो ये भी नया हो गया। नाउ आई विल टेक दिस जीरो, तो जीरो इज ऑलरेडी देयर, सो आई हैव टू टेक वन मोर बिट, सो आई विल टेक जीरो वन, सो व्हाट आई कैन राइट हियर? जीरो वन। आफ्टर दिस वन आई विल टेक हियर वन, वन इज ऑलरेडी देयर, देन जीरो आई विल टेक, जीरो इज ऑलरेडी देयर, तो वन जीरो ऑलरेडी है तो एक और बिट लेके आऊंगा मैं, तो ये लेके आऊंगा वन जीरो वन, सो व्हाट आई कैन राइट? वन जीरो वन। आफ्टर दिस जीरो आई विल टेक, जीरो इज ऑलरेडी देयर, देन वन आई विल टेक, वन इज जीरो वन इज ऑलरेडी देयर, so 0 1 is already there, so I'll remove this comma, so 0 1, sorry, 0 1, 0 is already there, so I have to take one more code, so what I will take? One more time 0, you can see one more time 0, so I'll put here 0 1 0. Now this one I will take here 1, 1 is already there, then 0 is already there, one more time 1 is 1 0 1 is there, so I'll put one more, so 1 0 1 0, that is a new code. So you can see ये सब कोई भी कोड यहाँ रिपीटेड नहीं है, एवरी कोड इज डिफरेंट, दिस इज 0 1 0, सो वी डोंट वांट टू पुट द रिपीटेड कोड हियर। सो इफ एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट इन दिस? सो अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी ये पहला पार्ट है, अभी दूसरे पार्ट में बढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत है आपको? देखिए लैम्पल जिप एनकोडिंग से एक सवाल बिल्कुल आएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत हो आप बता देना। अब हमको क्या करना है, अब इसके हिसाब से इसका डिक्शनरी लोकेशन लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? So I wanted a new page, so I'll write here dictionary location, then I will write here content, then I will write here code word. तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या लिखेंगे? कंटेंट लिखेंगे। आपका कंटेंट सबसे पहले क्या है? ये जो कोड आया है आपका, दिस कोड, दिस इज योर कंटेंट, this is your content, all this code is your content, so I can write here content में क्या लिख देंगे? यही चीजें लिख देंगे। So in the content what I can write here? I can write here 1, then 1 0, then we have to see what other code is there. So 1 0, after this you can see 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. So I have highlighted, so I'll write here. So how to write? So I'll put here 1, then I'll write here 0, then there was 1 0, then there was 1 1, then there was 0 1, then I think 1 0 1 was there, 1 0 1, then 0 1 0, then 1 0 1 0. So this was our content. Now we have to write the location. तो आपको लोकेशन 3 बिट का मैंने पहले ही बताया था, ये कैसे लिखते हैं लोकेशन 8 4 2 1 के हिसाब से। तो यहाँ 3 बिट है, यहाँ देखिए मैक्सिमम 3 बिट है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या होगा? इसका लोकेशन कहाँ रहेगा? 0 0 1 में। दूसरे का लोकेशन, इसका लोकेशन कहाँ होगा? 0 1 0। इसका लोकेशन कहाँ होगा? 0 1 1। इसका लोकेशन कहाँ होगा? 1 0 0।
इसका लोकेशन कहाँ होगा 101. दिस बिट लोकेशन विल गेट 110 एंड दैट विल 111. कैसे लिखा मैंने, 3 बिट है तो 8421 लगा दिया, तो 1010 के हिसाब से 8421 इन द स्टार्टिंग क्लास ओनली आई हैव टोल्ड दैट ये यूज में आएगा, तो यहाँ पे क्या कर दिया 421 के हिसाब से मैंने लोकेशन लिख दिया यहाँ पे 421 के हिसाब से लोकेशन लिखा हुआ है। फिर डिक्शनरी लोकेशन है, फिर कोडवर्ड देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये आ रहा है, सबसे पहले ये कंटेंट यहाँ पे लिख दिया मैंने, आई हैव रिटन हियर कंटेंट। आफ्टर दिस इसका लोकेशन लिख देंगे हम, इसका लोकेशन क्या है 001। ये स्टार्टिंग में सबसे पहले ये कंटेंट लिखोगे आप, ये कंटेंट हो गया, दिस इज द कंटेंट। After this, the location of this code. Now next we will move to the zero code word for zero. So I'll write here zero, और यहाँ पे देखो जीरो कहाँ पे लोकेशन में है हमको पता नहीं है, so what I will write here 000. जीरो इस डिक्शनरी में कहाँ सेव्ड है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमको, तो हमने क्या लिख दिया 000. अब हम इसके बाद ये देखेंगे, ये जीरो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0. नाउ 1 का लोकेशन कहाँ है 00001. So what I will write here 001. After this location I will set. So I'll write here 1 here. फिर 1 का लोकेशन कहाँ है 001. So I'll write here 001. So now this 1 I'll write here 1. 0 का लोकेशन कहाँ है 010. So I'll write here 010. After this you can see this 1 I'll write 1. 10 का लोकेशन कहाँ है 10 का लोकेशन 011 पे, so I'll write here 011. After this 0 I'll write here this 01 का लोकेशन कहाँ है 01 का लोकेशन आप देखेंगे तो 101 पे है 101, and this will remain. So this will be, so this is your final answer, the 1010. And one more bit, I think this you can see 0 here, so I'll put here 0. 101 का लोकेशन कहाँ है 101 का 110 पे 110. So your final answer will be C equal to, ये सब एक साथ लिख देंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा 001100000011010101010. अभी बताइए कितने लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये एक सवाल बिल्कुल आएगा और बहुत ही सिंपल है ये लैम्पल जिप एल्गोरिथम। मैं अभी 4-5 सवाल इस पे कराऊंगा और इसको भी फिर से बताऊंगा अगर आपको डाउट है तो। सो अभी बताइए कितने लोगों को समझ में नहीं आया। बहुत इंटरेस्टिंग है सर। हाँ बताइए। लोकेशन समझ नहीं आई। हाँ बाकी बिल्कुल, समझ। फिर से लिख देते हैं लोकेशन, फिर से आपको दिखा देते हैं। आप जिस स्टेप में दिक्कत होगा आप मुझे बताना, ठीक है। यस सर। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ डिक्शनरी लोकेशन। यहाँ पे क्या है अपना कंटेंट है, फिर क्या है अपना कोडवर्ड है। सबसे पहले कंटेंट लिख देंगे, कंटेंट पहला क्या है 1 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 10 था, तो मैं देख के बताओ, फिर 11 था मेरे ख्याल से 11, देन 01, देन 101, आफ्टर दिस 010 010 एंड लास्ट वन इज 1010। 10। ये क्लियर है आपको, कंटेंट क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो डिक्शनरी लोकेशन कैसे करते हैं, मैंने बताया था 8421 के हिसाब से डिक्शनरी लोकेशन होगा, तो 421 यहाँ कर दो, 3 बिट है मतलब 4041। तो आप अगर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये समझ में आया आपको कैसे लिख, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर यहाँ पे 2 0, फिर हाँ यस सर, यस सर, समझ आ गया। आगे आपको फिर 0 1 1, फिर 0 0 1 1, फिर 404 4 1 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 1 0 इसलिए हटा दिया मैंने क्योंकि 4 1 यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? एक ये एक्स्ट्रा होगा, ये नीचे वाला ये एक्स्ट्रा होगा, एक इसको एक एक्स्ट्रा छोड़ना है अपने को, बाकी ये समझ में आया आपको। फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस 1 को देखेंगे, इस 1 को क्या कर दिया मैंने यहाँ लिख दिया, 1 के सामने क्या था ये था, तो इस सेम कोड वर्ड को 001, दिस इज योर फर्स्ट कोड वर्ड। नाउ वी विल सी 0, सो आई विल पुट हियर 0, इसका कोई लोकेशन नहीं है 0 का यहाँ पे सामने में, तो आई विल पुट हियर 000। नाउ आई विल सी द थर्ड कोड, दिस 0, आई विल राइट हियर। अब क्लियर है आगे। क्लियर है? और किसी को दिक्कत है?
किसी भी आदमी को दिक्कत है तो बताइए आप। सर सर जैसे कि अपन ने 1 का लोकेशन लिखा तो 1 के सामने वाला 001 लिख दिया, हाँ लेकिन सर 0 का लोकेशन आपने बताया कि कोई भी लोकेशन नहीं है, मतलब कैसे कोई नहीं, भी। देखो 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 बता रहा हूँ फिर से। एक बार अब मैं समझ रहा हूँ कहाँ डाल देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ आपको मैं एक बार। 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1, देन 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0, यही था। फिर इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? देखिए 1 के सामने क्या था अपने पास? 1 के सामने था, यहाँ पे था 0 0 1, यहाँ पे क्या था 0 1 0, यहाँ पे क्या था 0 1 1, इधर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। तो ये लास्ट हमेशा छोड़ के रखना है हर क्वेश्चन में, बस यहाँ तक खत्म होगा आपका, यहाँ यहाँ तक खत्म होगा। अब देखो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले अपने को जो भी ये सिंगल बिट है, जो भी ये सिंगल बिट है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। जो भी आपका सिंगल बिट है, यहाँ पे सिंगल बिट है उसको आई हैव रिटन लाइक दिस सेम। अब देखो इसका लोकेशन यहाँ पे क्या है 0 0 1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 0 0 1। ये क्लियर है अभी? चल सॉरी, यस सर, वन यस सर। सेकेंड, सॉरी सॉरी। जो भी ये सिंगल बिट है इसको ऐसे लिख देंगे हम 000। मतलब अभी ये सिंगल बिट को हमेशा ऐसे ही डील करेंगे 000, फिर ये सिंगल बिट है यहाँ पे 0, यहाँ पे 000। ये जो दो बिट जो भी आपको सिंगल बिट दिखेगा उसको सिंगल ऐसे लिख देना, उसके आगे 000 लगा देना, उसके आगे 000 लगा देना। अब देखो इसको देखो आप, जीरो को, इस जीरो को मैंने यहाँ लिखा। अब ये 1 का लोकेशन कहाँ है? 1 का लोकेशन देखिए ये है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 0 0 1। फिर इसको देखो आप, ये 1 लिखा मैंने 1, फिर ये 1 का लोकेशन क्या है 0 0 1, सो आई राइट हियर 0 0 1। नाउ दिस 1 1 आई राइट हियर। फिर 0 का लोकेशन क्या है 0 1 0। आफ्टर दिस आई राइट हियर 1 1 1 0 का लोकेशन देखेंगे, 1 0 का लोकेशन क्या है 1 0 का लोकेशन है 0 1 1। फिर आई राइट हियर 0। फिर 0 1 का लोकेशन देखेंगे, 0 1 का लोकेशन क्या है 1 0 1। नाउ आई राइट हियर दिस 0। फिर 1 0 1 का लोकेशन क्या है, इफ यू कैन सी 1 0 1 का लोकेशन है 1 1 0। अभी चल जो भी सिंगल बिट आएगा स्टार्टिंग में उसको आप सिंगली ऐसे लिख के इसके आगे बस जीरो यस लगा सर, दें। अभी क्लियर यस है? सर, यस सर, यस सर। ओके, सो वन क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली देयर फ्रॉम दिस लैम्पल जिप एनकोडिंग। सो आपको कभी भी दिक्कत हो आप प्लीज डाउट मत रखिएगा। एक और आपको सवाल देता हूँ मैं, आप प्लीज इसको करो। ये आपके आरटीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन वाज लाइक दिस, एनकोड गिवन डेटा sequence by Lempel zip encoding. So data was given like this: A A B A B B B A B A A B A B B B A B B A and B B. The B भी है साथ में. This was the question. So question was like this: A B A. So A A A B A B A triple B, then B A B A A B A B B B A triple double B A and B B. So please try to solve it. अगर आप करिए तो एक बार खुद से करके देखिए, नहीं तो मैं बताऊंगा इसको. This was the question asked in the RTU paper, and this was of 8 marks. So I'll show you how simple it is, and very easily you can score 8 marks from this question. तो जिन लोग जो लोग लगा रहे हैं एक बार लगाइए, जो लोग नहीं लगा रहे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एक बार देखो, सबसे पहले ए देखेंगे, ए सिंगल है तो यहाँ पे क्या कर दिया, ए अलग हो गया। देन यू कैन सी ए इज देयर, ए बी इज डिफरेंट, सो आई पुट हियर दिस, आई राइट हियर ए बी। देन यू कैन सी A is already there, AB is already there, then ABB is different. So I will write here ABB.
then we have covered this. Then B is single, so I can write here B. I can easily write here B. B repeated nahi hai. B is not there. So now you can see AB has came. AB aa gaya. ABA is different, so I'll write here ABA. Now you can see this ABA has came. So now one more time AB. So I can write here ABA. So after this you can see BB. This BB, this has not came in the code, so I can write here BB. So after this AB, BA, AB is there, ABB is also there, so I'll write here one more code ABBA. Last BB, so BB is repeated, so I'll put here BB. So this clear how I've written? बहुत सिंपल है, आपको बस देखना है रिपीटेड नहीं हो तो I can put position here. पोजीशन के हिसाब से अगर मैं लिखूं यहाँ पे, सो व्हाट इट विल, दिस विल बी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, एंड दिस वन विल बी नाइन्थ. सो यू कैन सी सेवन एंड नाइन आर सेम. हाँ बताओ. सेम है ना वो तो. बीबी तो मतलब 7 वाले पोजीशन पे भी. तो लास्ट बिट है, इसको छोड़ नहीं सकते ना, तो इसलिए मैंने दिखा दिया 7 9 सेम है. जो 7 का बिट होगा, जो 7 का कोड होगा, 9 का भी होगा. ये दोनों लास्ट बिट है तो इसको छोड़ नहीं सकते हम, लास्ट में है ना ये दोनों, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया 7 एंड 9 बोथ आर सेम. ओके, तो मतलब इनको साथ में नहीं लिख सकते क्या सबको? मतलब कैसे साथ में? जैसे कि ये वाला है ना, लास्ट में ए बी, बी ए, बी बी, इन सबको साथ में. ए बी ए किसको साथ? नहीं सर, नहीं समझ आ गया. अभी आप सवाल आगे लगाओ, आपको अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. अब इसको सिंबल में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे मान लीजिए ए को 0, बी को 1. तो देखिए अब इसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे. ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ा सवाल दे दिया आपको. अब देखो ए है यहाँ पे ए, तो ए को हम लोगों ने, ए को सबसे पहला बिट है तो ए को सेम ऐसे लिख दिया. इसके सामने क्या, ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए, किसी अलग न्यूमेरिक से रिप्रेजेंट कर दीजिए 5 से. फिर देखिए फिर क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है. दिस ए बी इज कमिंग, दिस ए बी. सो व्हाट यू विल राइट हियर बी, और ए के सामने क्या है 1 है, सो व्हाट यू कैन राइट 1 बी. After this you can see B is there, so you will write B. और AB की जगह क्या लिख सकते हैं हम 2. So what you can write 2B. After this you can see B, only single B, so B, and you can put here 5B. जैसे सिंगल है तो मतलब 0 है ही है, 000 जो मैंने बोला था, तो उसकी जगह 5 लगा दिया मैंने. अब देखिए ABA है, so I can write here A instead of AB. What I can write 2A. After this AB, so I'll this sixth position. So AB for B I'll write here this, and ABA means 5B. For C you can see for 7th code what you can write. This B will be there same. This B, 4B will be there. So there 4B. For this ABA, so I'll write here A double B को क्या लिख सकते हैं 3A. और ये 7BB क्या है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया न्यूमेरिकल में. ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? इज देयर एनी डाउट इन दिस? न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, पाई ए 1B 2B 5B 2A 5B 4B 3A 7. बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे तो बहुत सिंपल है. अब यहाँ पे कुछ मत करिए, A को 0 मान लीजिए और B को 1 मान लीजिए, बस यही करना है अपने को. फिर लिख दीजिए 5 की जगह क्या बोला था मैंने 000 और A को 0 हो गया. फिर वैसे ही करके आपको सारा कोड लिख देना है बस. सो आप बताइए इसमें कोई डाउट है? ये 8 नंबर का सवाल आया था आपके पेपर में.
अगर किसी प्रकार का डाउट है तो बोलिए। Should I move to the next question? Is this clear? So let's write one more question. So the most of it, so two question I will give you. So please try to solve it. So one question is like this: 1 1 1 0 1 0 0 1 1 triple 0, then 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0. One question is this, and other question is, second problem is 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. So please try to solve this two problem. अगर ये दोनों आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर लैम्बोर्गिनी एंड पुडिंग में कोई डाउट नहीं रहेगा आपको. So one question will be always there in your paper. So सबसे पहले इसका हम लोग बनाते हैं. सबसे पहले आप देखोगे 1 अलग कर देंगे, 1 will be different. Then you can see this 1 1 1 1 is different. Then you can see 0 is different, 0. Then you can see 1 0 is different, 1 0 is different. Now we can write 0 1 0 1. Now 1 0 0 1 0 0 is different. After this 0 1 0 is different. Then 1 1 0 is different. Then 1 0 0 is different. ये सब डिफरेंट निकाल लिया हम लोगों ने. फिर हम क्या करेंगे, यहाँ डिक्शनरी लोकेशन करेंगे. आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय डीएल. यहाँ कंटेंट लिख देंगे अपना और यहाँ कोड वर्ड लिख देंगे. कोड वर्ड सबसे पहले कंटेंट लिखेंगे तो क्या है 1 1 1 0 1 0 then 0 1. After this 1 0 0 then 0 1 0 then 1 1 0 then 1 0 0. This is your content. Now you can see location. So location, 3-bit location you have to write. So you'll write here 0 0 1 then 0 1 0 then you will write 0 1 1 then you will write 1 0 0 then 1 0 1. After this 1 1 0 1 1 0 then 1 1 1 1 1 1. So now 1 has same, so I'll write here 1 and I'll put 0 0. I've told you put 0 0. Then you can see 1 is there, so you'll write here 1 and this one will be having 0 0 1. This 0, so you'll put here 0, you'll find here 0 0. After this, for this 0, you put here 0. For this 1, what you can write 0 0 1 0 0 1. Then this 1 you will put here 1. For this 0 you'll write 0 1 1. तो ऐसे ही करके इसको भर लेंगे आप तो सब भर जाएगा. So if any doubt, please tell me. No doubt, so solve the next problem. तो जो आपका नेक्स्ट फाइनल कोडवर्ड बनेगा, एक सब साथ में इसको लिखेंगे तभी वो आंसर सही होगा. सो फाइनल कोडवर्ड विल बी लाइक दिस. इसका अगर लिखेंगे हम तो 0 0 0 1 0 0 1 1 4 टाइम 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 triple 0. This will be your answer for this. So it is very simple. Just follow the step. Your problem will be solved. वो जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने कराया था ए भी वो आया हुआ था, तो अगर ऐसा भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे. So please try to solve it by using your brain. So you will be having no doubt. गलत सही जो भी है आप कॉपी पे लिखिए. जब तक लिखेंगे नहीं तब तक अपनी गलती मालूम नहीं चलेगी. So please try to solve this question. So every time they are asking one problem from Lempel-Zip algorithm, and when you will study data compression, or I think in the 7th semester also, so this will be there. So it is very important topic for you guys. So try to solve it by yourself. If any doubt, will be there at any time. Contact me. I will be there for you. So I'm moving to the next. So I'm going to solve this problem. So
because I don't want to waste the time. I wanted to finish the syllabus by 20th June. So this is the problem 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. So first of all, you have to see the repetition of the code. So first you will see 1 is different. Then you can write 0. Then you can see 1 0. Then you can see 1 1. Then 0 1. Then after this 1 0 1 you can see from here. Then you can see 0 1 0 also. Then after this 1 0 1 0, this last bit. After this we have to write the dictionary location. So I'll put here the heading dictionary location. सर शायद यही क्वेश्चन किया था ना अभी इससे पहले वाला, मतलब फर्स्ट में जो किया था वो। अच्छा ये कर चुके हैं? हाँ सर। तो इसके आगे आप कुछ भी अलग लगा दो, जी 1 1 0 0 कुछ भी लगा दो, उसको अपने हिसाब से ठीक है solve सर, करो। ठीक है। अभी आप बताओ किसी को डाउट है इस लैम्पल जिप एल्गोरिदम में? किसी भी तरह का डाउट है आपको तो बताइए आप। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो शुड आई स्टार्ट वन मोर टॉपिक हियर? एक और टॉपिक स्टार्ट करें। आप लोग ट्री और तो पढ़े होंगे ना डाटा स्ट्रक्चर में शायद? हाँ सर पढ़े तो थे। हाँ पढ़े तो थे। डाटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो। सो हैव यू स्टडीड प्रीफिक्स कोड? देयर प्रीफिक्स कोड, आई थिंक यू माइट हैव स्टडीड प्रीफिक्स कोड। हैव यू स्टडीड प्रीफिक्स कोड? सो इफ नॉट, हाँ आप पढ़े आप लोगों ने? हाँ क्या होता है प्रीफिक्स कोड? किरण बताइए प्रीफिक्स कोड क्या? हाँ कोई भी एक बताओ आप, प्रीफिक्स कोड क्या होता है? सर जैसे अपन लिखते हैं a प्लस बी, यानी a और b के बीच में ऑपरेटर लगाते हैं, तो प्रीफिक्स में पहले लगा देंगे प्लस ए बी। अच्छा चलो ठीक है, आपने कुछ और मैं हाँ ऑपरेटर पहले आते हैं। ठीक है, मैं आपको एक प्रीफिक्स कोड बताता हूँ, फिर आप बताना आपने पढ़ा है कि नहीं। देखो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। सो बेसिकली प्रीफिक्स कोड इज ए सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस such that no sequence in P is a prefix of any other binary sequence P। देखिए घबराना नहीं है डेफिनेशन से, अभी और सिंपल कर देंगे इसको। तो ये क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ए बाइनरी सीक्वेंस सच दैट नो सीक्वेंस इन पी इज ए प्रीफिक्स ऑफ एनी अदर बाइनरी सीक्वेंस पी। मतलब मान लो, सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सो आई विल टेक वन एग्जांपल फॉर यू। सो लेट्स सपोज 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0। सो दिस इज द बाइनरी सीक्वेंस। सो इफ यू कैन सी इन दिस सीक्वेंस, this 0 1 is different, all these codes are different, but if you can see so this 0 1 is prefix of this code. Here also 0 1 0 is there, this 0 1 is prefix of this code. So मतलब यहाँ पे 0 1 है, ये स्टार्ट हो रहा है 0 1 से, तो आप इस कोड को देखो, ये भी 0 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस सच दैट नो सीक्वेंस इन पी इज ए प्रीफिक्स ऑफ एनी अदर बाइनरी सीक्वेंस। बट इसमें क्या हो रहा है? प्रीफिक्स है यहाँ पे 0 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स कोड नहीं हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1। यहाँ पे देखिए ये कोड यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 0 1 1 यहाँ पे देखिए सेम आ रहा है, तो ये इसका प्रीफिक्स नहीं हुआ। अब कोई पूछेगा सर कौन सा प्रीफिक्स कोड हुआ? तो आप एक देखिए 0 1 1 0 0 1 0 1, इसमें देखिए कोई भी कोड का प्रीफिक्स सेम नहीं है। दिस इज व्हाट ए प्रीफिक्स कोड इज। सो बाय डेफिनेशन ओनली यू कैन से सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस सच दैट नो सीक्वेंस इन पी इज प्रीफिक्स ऑफ एनी अदर बाइनरी सीक्वेंस पी। तो यहाँ पे देखिए नो सीक्वेंस इन पी इज एनी अदर बाइनरी सीक्वेंस ऑफ पी, किसी का प्रीफिक्स सेम नहीं है। तो दिस इज व्हाट ए प्रीफिक्स कोड इज। सो और अगर एक और प्रॉब्लम, एक और एग्जांपल लेंगे हम, मान लीजिए 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये क्या है? प्रीफिक्स कोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 1 0 1, यहाँ पे 0 1 0 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो आफ्टर दिस इज नॉट ए प्रीफिक्स कोड। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, सो दे विल आस्क यू अ प्रॉब्लम लाइक दिस, which of them are a prefix code. So
they will give some set of number. So from there they will ask. So if you are clear with the definition, so you can easily pick what is the prefix code. And how to draw the prefix code. So suppose अगर हमको draw करना हो, अगर ये code दिया हो 011011, so अगर ये, तो हम लोगों ने ट्री में पढ़ा होगा, 0 में कहाँ जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, 1 में कहाँ जाते हैं, राइट जाते हैं. So I think everybody has studied in data structure. So how to draw this? So first of all, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इसको w मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं. अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे तो 0 में क्या हो गया, ये 0 सबसे पहले क्या आया, 0 आया. तो 0 के लिए कहाँ गया, ये 0 हो गया. ये क्या हो गया, x हो गया, हमारा x बन गया. फिर ये देखिए y 1 में कहाँ जाए, राइट जाएंगे. अब ये क्या हो गया, y हो गया. ये क्या हो गया, 1 हो गया. अब क्या है, 1 0 है, तो 1 के लेफ्ट में, यहाँ पे 1 हमारा पहले से 1 के लेफ्ट में. So you put here, so what you will get here, z. So this is 1 0. Now what you are getting, 1 1. So 1 के राइट में, so 1 1. So 1, this is 1. So what you will get here, w. So if in the tree they will ask you to draw, you can draw like this. I think everybody is, you are familiar, since you are a IT student, you have studied data structure. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 है, इसको ड्रॉ करना है अपने को. सबसे पहले 0 के समय राइट लेफ्ट में जाएंगे. दिस इज ऑफ 0 एंड दिस इज ऑफ 1. दिस इज 0, दिस इज 1. सो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 1 0. तो 1 के राइट में जाना है, तो वी डोंट नीड टू ड्रॉ दिस. तो सबसे पहले 1 0 बनाना है. तो 1 के बाद 0 है, तो इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसके लेफ्ट में 1. इसको मान लेते हैं x. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, x आ गया, यहाँ पे 1 0 हो गया. नाउ व्हाट इज देयर, इज दिस क्लियर हाउ आई एम ड्राइंग दिस? कोई दिक्कत है इसमें? सो is this part is clear how I have drawn this? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए. हाँ कोमल, कहाँ डाउट है? नॉट क्लियर है. हाँ, तो ये आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा. तो if they will ask you to draw this tree of this data structure, you can easily draw. So one homework I will give you, draw for this 0 0 1 0 0 1 and 0 0 0 1. So please try to draw this prefix code using tree method. So basically क्वेश्चन प्रीफिक्स से यही आता है जो मैंने आपको पीछे बताया था कि सेलेक्ट, मतलब चूज एनी, मतलब एक 4 प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, 4 पार्ट दे दिया जाएगा, एंड सेलेक्ट one of the prefix code. So you have to, by the definition you can choose what are the prefix code. So please try to draw this whatever I have told you using this method, so your doubt will be more clear. So today we have covered LAMP and coding and prefix code. So if any doubt is there, you can connect with me anytime. So in this week we will organize 2 more classes. So let's see, I'll confirm with your CR and I will write in your group. So in 3 more working days are there. So in 3 days I will organize 2 more classes. So actually I wanted to finish the syllabus by 20th June so that you can get time to study and revise. So this is all about today. We will try to meet tomorrow or day after tomorrow anytime. I'll confirm with your CR. Thank you everyone. So if any doubt is there, you can stay or class is over. Thank you, Komal. Thank you, Avichal. Thank you, everyone. Thank you, Shreya, Suraj, everyone. Thank you.